mega exclusive, the word that we have received from our intel sources. The top Jammu and Kashmir police has informed CNN News 18 that Riyasi terror attack is a desperate attempt to revive terrorism in Jammu and Kashmir. Temple was in fact under intelligence radar from last 1 month. Lashkar-backed TRF has already claimed responsibility of this particular attack. Tejinder continues to stay with us on the broadcast. Tejinder, it rarely happens that such outfits attack any non-locals, but this time they have vowed that they are going to continue their attack on the non-locals, as well as the information about this particular temple being in the radar from last month is something very crucial in this entire case. Yes, you see, there were intelligence inputs with the security forces and the other intelligence agencies which are operating in Jammu and Kashmir that Pakistan-based terrorists, they would try to target the temples in the Riyasi district, the pilgrims who come to this temple, and there were elaborate security measures that were put in place. But yesterday, when this incident happened, what we are told that the terrorists they were on an ambush, and when they saw this bus full of pilgrims, they started firing at this bus. We are told that one of the bullets hit the driver, and the driver lost the control of this bus, which led to this bus falling into a deep gorge. Right now, efforts since last night have been put in place to ensure that the terrorists who were responsible for this attack on the pilgrim bus are identified and they are neutralized. But right. The Lashkar-backed the resistance front has taken responsibility for this terror attack. So the Pakistan has been desperate to revive terrorism in the Jammu region. In the last couple of years, there have been several such incidents of terror attacks. Even in last year, there was an attack in Dangri village of Rajouri, in which the civilian population was targeted. And again, there were several such attacks in Poonch. Right, Tejinder, apologies for interrupting you over there. That's all the time that we have on this particular story. Certainly a matter of concern that a terrorist organization has already claimed responsibility of injuring several civilians. They have vowed to continue that practice as well. Tejinder, thank you so much for walking us through all those crucial updates. Some more reactions coming in. मैं अपने परिवार के साथ शिवखोड़ी से दर्शन करके आ रहा था। अच्छा, फिर कटरा के लिए जा रहा था। ठीक है। मेरी कटरा से ट्रेन थी 9:45 की। अच्छा। रास्ते में अचानक से फायर हुई। अच्छा। और ड्राइवर को क्या हुआ? अच्छा। डिसबैलेंस लिया। अच्छा। और गाड़ी खाई में गिर गई। अच्छा। ठीक है। ये तुम शिवखोड़ी से वापस आ रहे थे? हाँ। अच्छा, तो वहाँ रहने वाले कहाँ के हो आप? भैया हम तो रहने वाले कानपुर के भी हैं। कानपुर से जी, लेकिन मेरा जिला गोंडा है। गोंडा। मैं अपनी दीदी और जीजा के साथ आया था दर्शन करने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स हाथ लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। रियासी जिला के शिवखोड़ी में आज जिस प्रकार से यात्रियों को बस पर अटैक किया गया, बड़ा दुखद है। जो जानकारी मिली है, अभी तक 9 लोगों की मृत्यु हो गई और बस बाद में खाई में गिरने से काफ़ी लोगों का देहांत हो गया, कैजुअलिटीज़ काफ़ी हुई। आज भी पाकिस्तान प्रस्त लोग इस प्रकार से प्रयास करते हैं और पाकिस्तान द्वारा जो फैलाई गई मिलिटेंसी है वो चिंता का विषय है। हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी हद तक मिलिटेंसी को ख़त्म किया है। मैं उन लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुरक्षा बल उनको घेर करके जल्दी मार गिराएंगे। देखिए, हमें बहुत दुख है। ये तो कायराना हमला है सिविलियनों पे और वो भी पिलग्रिम्स पे उस एरिया में।
तो सुना है कि 10 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी तक मारे गए हैं। तो हमें बहुत ही दुख है इस चीज़ का और हमें बहुत ही हमदर्दी है उस फैमिली पे जो जाम बहक हुए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इमीडिएट उनके लिए कोई मदद, रिलीफ जो भी होगा वो पहुंचाया जाए। और सरकार को मुतरक होना चाहिए क्योंकि उस एरिया में पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा हमले हुए। वो रजौरी, रियासी, पुंछ, ये एक ही कालाकोट, एक ही जुड़ा हुआ रूट है। तो सरकार को इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि ये मिलिटेंसी जो है ख़त्म हो जाए। मोदी गवर्नमेंट की नई कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी दिल्ली में और उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया। हमारे कुछ अपोजिशन लीडर स्टेटमेंट देते रहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। मोदी गवर्नमेंट की तीसरी टर्म की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, इसका पाकिस्तान को घबराहट है और इसीलिए इस तरह का हादसा हुआ। धन्यवाद, नमस्कार। अब फॉरेन टेररिज्म है। अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहां से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहां से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक के खंभा उड़ाने की कोशिश करी। तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपका बिजली तो आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहां से लोग पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नौकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं बंदूक लेके आते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश रहेगा कि वहां आने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चंद लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको मदद करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने की। With those shocking